people, welcome to the session. I'm Rashida Sarsi with your Vedanta Chemistry Master Teacher. I hope some mast honge, swast honge. So guys, we always want to know, I always wanted to know कि बॉस टॉपर्स खाते क्या है. पहले मैं उनसे यही पूछती थी कि भाई तुम खाते क्या हो, how you can do it, how you can balance everything out. तो कुछ सर्वे के बाद हमें उनके हिडन सीक्रेट्स पता चले. हिडन सीक्रेट्स ऑफ CBSE क्लास 10 बोर्ड टॉपर्स. So क्या आप जानना चाहेंगे? I hope yes, because everyone wants to make their parents proud. हमें भी कुछ अच्छा करना होता है, हमारे के अंदर भी यही इच्छा होती है कि यार काश हमारा फोटो पेपर में आए एंड एकदम हेडिंग आए टॉपर ऑफ द स्टेट, isn't it? Everyone has that चाहत of making their parents proud. So let's understand and let's see कि उनके hidden secrets ऐसे क्या है and हम उसे follow कर सकते हैं. We are all equals guys. कोई भी टॉपर पैदा नहीं होता है, सब लोग मेहनत करते हैं. They have some things, उन्होंने कुछ ऐसे points crack कर लिए होते हैं जिसकी वजह से they get a right pathway. So yes, if you have those aims high, then this session is absolutely for you. But उससे पहले एक schedule of the week पे नजर मारते हैं. So, guys, we started this week with the 4 p.m. session, जहाँ पर मैंने आप लोगों से एकदम डीपली बात करी about CBSE 2024 mistakes की, जो कि आपको कभी नहीं करनी चाहिए. इस सेशन में मैंने कई सारी ऐसे बातें बताई जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, but those are very very important for your board purpose. वहाँ पर ऐसे पॉइंट्स को देखा जाता है, आपको अपने आंसर्स कैसे स्क्रैच करने हैं. Like if you do not want to write something but आप गलती से लिख चुके हैं तो आप उसको कैसे काटोगे and so on. बहुत छोटी छोटी सी बातें करी हैं which is very very important for your board exams, not only for your grade 10 but also for your grade 12 boards also. फिर हम लोग ने करा है NCERT मैराथन. भाई घूट के पी गए थे हम लोग. कार्बन एटम्स कंपाउंड का पार्ट 1 पार्ट 2 भी सून यू विल गेट, जहां पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी से शुरुआत करेंगे. उससे पहले हमने आइसोमर्स, होमोलॉजी सीरीज, व्हाट्स द नेचर ऑफ कार्बन एंड बेसिक आयुपैक नॉमेनक्लेचर तक हम लोग ने पार्ट 1 में कंप्लीट करा है. एंड वी ऑल्सो प्रैक्टिस्ड वीक क्विज. सो आप जाइए, सिट विद योर पेन एंड पेपर एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. Now we have also completed with 10 short answer questions of chemical reactions and equations. Answers कैसे लिखने हैं, keywords कौन से हैं, मैंने वहाँ पे जरूर मार्क करा आप लोगों के लिए. So आप उन keywords को pick कर सकते हो and whenever you get answers like that, तो आप उन keywords के basis पे अपना answer जरूर लिखेंगे. Otherwise उन keywords को mention नहीं करने पे marks करते हैं, क्योंकि हर एक keyword का specific marking allotted होता है. Then we have a session of basic revision of chemical formula, जहाँ पे हमने बहुत basic formulas को revise करा है. Just because कई बार आप लोग भूल जाते हैं कि formulas कैसे लिखे जाते हैं and आपका पूरा grade 10 formulas reactions पे based है. So it's just a basic revision and हम हर एक chapter के formulas को एक साथ combine कर देंगे. Alright. Then we have Uma session, mind map of carbon and its compound, which you can copy it down for yourself. Exam से पहले बस उस mind map को देखा and done and dusted, right? And stand alone this today 9 p.m. Hidden secrets of CBSE class 10 board toppers. Chalo, I am so eager to tell you now. Big journey begins with small steps. So baby steps लेते रहेंगे and let's move on with our first technique. First hidden secret is effective time management. देखो time management करने की कोशिश हम सब करते हैं. We want to summate everything in one day. मतलब हम assignment भी कर ले, test भी दे देते हैं, है ना, और अपना homework भी कर लेते हैं, project भी कर लेते हैं, self study के लिए भी time चाहिए, school भी जाना है, friends से बात भी करनी है. So we want to cater everything in one day. टाइम मैनेजमेंट कोशिश सब करते हैं, लेकिन सफल वो होते हैं which follow that strictly and they make a reasonable timetable for themselves. So let's have a look here. Toppers usually manage their time efficiently. कैसे manage करते हैं? They create their study schedule that allows them to cover the entire syllabus well in advance. Last minute studies करने भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा. Time management तो भूल ही जाओ. राइट. सो टाइम मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि छोटे छोटे पोर्शंस में अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलो. लास्ट मिनट के लिए कुछ मत छोड़ो कि अरे यार सिर्फ 2 महीने रह गए, अब बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. नो,
It has to be since start, and I'm pretty much sure you guys are doing the same. सिलेबस को वेल इन एडवांस वो लोग कंप्लीट करके रखते हैं. दैट इंक्लूड्स द एलोकेटिंग टाइम फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट. लास्ट के लिए टाइम रिविजन का रहता है, प्रैक्टिस का रहता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बैंक्स को एक एक करके खत्म करो. सो लास्ट मिनट सिर्फ प्रैक्टिस एंड रिविजन के लिए रखिए. ऑलराइट, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस. टॉपर्स का दूसरा रामबाण, दैट इज अंडरस्टैंडिंग दी सिलेबस. कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा वेटेज रखता है. तो जब आप रिवीजन करने बैठते हैं और आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आप उन पॉइंट्स को फोकस करो जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं. तो अगर आप थरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको पता रहता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए. मैंने भी एक सेशन बनाया था जहाँ पे आई टोल्ड यू रिपीटेटिव क्वेश्चंस दैट इज कमिंग फ्रॉम योर इंटायर चैप्टर्स, जो कि आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, कार्बन आयन्स, कंपाउंड, हर एक चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मैंने आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस दिखाए थे. सो गो सर्च दैट सेशन एंड आपको वहां से एक आइडिया लग जाएगा कि हमें लास्ट मिनट पे किन चीजों पे फोकस करना चाहिए. So they know more which topic are important and they focus on them, ensuring rather than covering the entire syllabus at the end, वो मेक श्योर करते हैं कि बॉस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो रिपीट हो रहा है हम उसको एक नजर जरूर मारें. कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट्स, एज आई सेड स्टार्टिंग से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी पड़ती है. अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, चलो आज केमिस्ट्री पढ़ लिया, अब चलो 2 हफ्ते बाद केमिस्ट्री का नंबर आ रहा है, तो भाई तुम भूल ही जाओगे, कोई भी भूल जाएगा, मैं तक भूल जाऊंगी. सो दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. आपको रिपीटेटिवली हर एक सब्जेक्ट को टाइम अलॉट करना पड़ेगा. 2 सब्जेक्ट्स के बीच में थोड़ा गैप दो, बट इट शुड बी रिपीटिंग एट अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि आज केमिस्ट्री पढ़ी और 2 महीने बाद वापस उठा रहे हो. आज केमिस्ट्री पढ़ी, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसको वापस उठाओ, रिवाइज करो एंड देन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज हाउ इट शुड वर्क. सो क्रैमिंग इज अ बिग नो. थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑब्वियसली, जैसे कि अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी सीरीज की, है ना, तो वो आपको क्रैम करनी पड़ती है, वो आपको याद करनी पड़ती है. आई डोंट डिनाई कि केमिस्ट्री में क्रैमिंग बिल्कुल नहीं होती है, बट उसके अलावा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लॉजिक होता है जो आप लोगों को यूज करना चाहिए, सो दैट अगर कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से घूम फिरा के दे दिया, तो घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन दिया, तो अगर कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि यार हाउ टू कनेक्ट डॉट्स, तो यू कैन इजीली क्रैक दैट क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो. तो क्रैमिंग से सिर्फ यही होगा कि जो पूछा है, जो आप पढ़ के गए हो, उतना ही आप वहां पर लिख पाओगे. आप अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे इफ यू ओनली क्रैम. सो डू नॉट क्रैम. रट्टाफिकेशन बंद कर दो. स्टडी इंटेंसिवली for few weeks before exams. So that's something which is not right. I told you कि लास्ट मिनट स्टडी से बचो. लास्ट मिनट में सिर्फ रिविजन होना चाहिए. चीट शीट्स पढ़ो, गो विद योर माइंड मैप्स एंड ऑल, एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. They maintain the consistent schedule for their study throughout academic year. Starting से पढ़ाई करना जरूरी है. अगर अभी गलती हो गई है, still you guys have time, go on and study. ठीक है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव नोट्स मेकिंग. नोट्स मेकिंग आपके ऐसे होने चाहिए कि आपके की पॉइंट समराइज हो जाए. आप एनसीईआरटी देखते हो, एनसीईआरटी के लास्ट वीक समराइज का टेबल दिया होता है. आप बिल्कुल वैसे अपने नोट्स बनाओ जहां पे आप अपनी लैंग्वेज में पूरे चैप्टर को पॉइंट वाइज समराइज कर रहे हो, कीपिंग इन माइंड की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपके लिए वो पूरा चैप्टर एक तरीके से क्लोजर दे दिया गया है ना. तो you close a chapter, you give a nice closure to a chapter, so आप भी confident feel करते हो, and you also feel like कि हाँ यार ये मैंने कर लिया है, right? So that positive feeling comes only if you put some efforts from your side. So creating concise, effective notes while studying is a valuable technique. पहली चीज, आई रियली अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स जो अपने नोट्स खुद बनाते हैं, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट ओनली इट गिव्स यू द एंटायर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट उसके साथ साथ आप लोगों की हैंड राइटिंग पे काम हो जाता है. आप ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम करते हैं, तो वही चीज आपके पेपर में जाके भी झलकती है. एज वेल एज आपकी स्पीड ऑफ हैंड राइटिंग भी चेंज होता है, इट इंक्रीजेस, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है. It helps summarizing key points and facilitates quick
revision. That's no doubt. सेल्फ मोटिवेशन बस हर कोई हर किसी को ये बोलना नहीं पड़ता है कि बैठ जाओ पढ़ाई करो, जैसे मम्मी पापा बोलते ना कि हमें तो किसी को बोलना भी नहीं पड़ता था, हम तो अपने आप पढ़ने बैठ जाते थे, तुम लोगों के पीछे पढ़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, कभी तुम यहाँ हो कभी तुम वहां हो। रिलेट कर पा रहे होगे आप शायद मुझसे। तो कई बार हम लोगों को बिठाने के लिए डांट लगानी पड़ती है, या फिर एकदम धक्का मार के बिठाना ही पड़ता है कि भाई पढ़ लो, एग्जाम आ रहे हैं। टॉपर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन होते हैं। तो अगर आपको ऐसे मोटिवेशंस की जरूरत होती है, सो व्हाट सम मोटिवेशन वीडियो, ट्रीट योरसेल्फ। आप देखो आगे का, दूर का देख कर देखो कि अगर मैंने ये कर लिया अभी तो बाद में आई विल हैव सो थिंग्स एंड यू फील वेरी वेरी मोटिवेटेड। तो अगर आप अपने आप को ट्रीट करते हो, थोड़ा डेस्टिनेशन देखते हो कि अच्छा अगर मैंने ये कर लिया अच्छा हो गया, सो आई विल बी बेनिफिटेड, मेरे मम्मी पापा खुश होंगे, आई विल बी हैप्पी, राइट? सो अपने आप को मोटिवेट करो, सेल्फ ड्राइव करो, एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्सेल इन स्टडीज। क्लैरिफाई डाउट्स, प्लीज झिझको मत, डाउट है तो पूछो। Why to fear if your teachers are here, right? So if I'm here, ask doubts, right? So toppers don't hesitate to seek help, and if you have to have any clarity in the concept, please ask doubts. आपके पास इतने सारे अभी YouTube पर videos आ चुके हैं, आप वहां जाओ, see the video, clarify the concept, seek help, ठीक है? Ask for help and reach out to your teachers also. And if you are asking more questions, let me tell you a little secret advice from my side also, कि अगर आप टीचर्स के पास जाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, they also feel like कि हाँ यार बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है, तभी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके पास डाउट्स कभी नहीं होंगे, अगर आप पढ़ाई करोगे तो डाउट्स निकल के आएंगे। एंड आप नोटिस करो, एग्जाम से पहले आप लोगों के पास पेज भर के डाउट होते हैं, पूरा साल आप कुछ नहीं पूछते हो। आप समझ रहे हो क्यों? लास्ट में आते आते तुम पन्ने पलटने लगते हो, बुक पढ़ने लगते हो, और तुम लोग को हंड्रेड्स ऑफ डाउट्स निकल के आते हैं। तो अगर वही चीज तुम पूरे साल कर लो तो भाई तुम्हारे प्रैक्टिकल के पेपर्स, तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। That was my secret. So try and ask questions from your teachers, but relevant questions, huh? Relevant questions. All right. Next is stress management. Who doesn't get stressed? Everyone gets stressed, right? भी तुम लोग इतना चीजें फॉलो करोगे तो कभी ना कभी तो यू गेट स्ट्रेस, एंजाइटी होगी, यू फील लाइक लीविंग एवरीथिंग आउट। सो दैट्स वाई हमेशा अपने कैलेंडर को बहुत रीजनेबल रखो, फ्लेक्सिबल रखो। कहीं घूमना है, फिरना है, मेडिटेट करना है, वॉक पे जाना है, यू वांट टू लिसन टू म्यूजिक एंड सो ऑन, सो इट शुड बी रीजनेबल। सो मेडिटेट, म्यूजिक सुनो। इफ यू थिंक कि आप म्यूजिक से रिलैक्स होते हो, स्ट्रेस फ्री होते हो, सो काम योर सेल्फ, जितना काम रहोगे उतना ज्यादा फोकस्ड रहोगे। So I hope you can relate to this, guys. I hope ये session आपके help आया होगा. So do like it, share it with your friends and subscribe it. And अगर आप कोई और चीज follow करते हैं as a topper, so आप मुझे जरूर बताइएगा chat box में, किसी और का उद्धार हो जाएगा भाई। क्या जा रहा है, किसी और का उद्धार कर दो, है ना? Thank you so much, guys. That was it from my side. This is me, Rashta Sir, signing off. Thank you. Take care. Stay safe. Stay happy always. And guys, do not forget to fill the Google form given below. वहां पर आप लोग को दिखेगा कि हमारे कुछ पसंदीदा टीचर्स आप लोगों के शहर में आ रहे हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके शहर में आए, अगर आपको invitation चाहिए, official invitation from Vedantu, so please do fill that form. Thank you. Bye. Take care.